Hello friends, today we will cover a very important topic, array, right, in C language. First of all, we need to know what is an array. Array is a set of same type of values. So हम अगर देखें प्रोग्राम में अगर सपोज एरे को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया बराबर एरे की क्या बेनिफिट है तो उससे पहले हमें इनका जो प्रॉब्लम है एरे को क्यों लाया गया तो वो जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं राइट। अगर सोचो मैं एक इंटीजर लेके काम करना चाहता हूँ तो मैं एक इंटीजर वेरिएबल बनाऊंगा। अगर मैं दो इंटीजर लेके काम करता हूँ तो मैं यहाँ दो इंटीजर बनाऊंगा राइट। अगर मैं तीन इंटीजर लेके काम करूंगा तो मुझे यहाँ वी हैव टू डिक्लेयर थ्री वेरिएबल्स राइट। इसी तरह सपोज सोचो मुझे 10 वेरिएबल लेके काम करना है सो वी नीड 10 इंटीजर वेरिएबल बिकॉज वन वेरिएबल कैन स्टोर only one integer value. So if we want to manipulate a program with 10 values, so we need 10 separate variables, right? A, B, C, D, like this way. So this is the problem. Okay, so 10 is fine, but if we need 50, then you have to declare 50 variables, right? Integer type of variables. So that problem can be mitigated by using array, right? So the aim of introducing array is to mitigate the number of same type of variables declaration. Okay, so uh, if we need to work with five integer variable, then we need to introduce array like arr, whatever name you can pass, right? And then the subscript operator and then 5. So this is the declaration of an array. Clear? So I declared a name ARR and in the square bracket I passed the size. That means there will be five values in ARR. But ARR is a name of the variable, right? So how can it store five values in a same name? So mechanism of naming, array naming, that is something different. We'll see that one, right? सो एरे को कैसे डिक्लेयर किया जाता है ना, एरे को डेटा टाइप चाहिए होता है एंड देन अ एरे नेम whatever name, right? Then the size of array, so this is in C language, this is fixed, right? You cannot dynamically create array in C, right? So ये फिक्स साइज का होगा। अगर आपको पांच वैल्यूज लेके काम करना है सो यू हैव टू pass 5. If you want the size 10, then you can pass 10. Whatever integer value you can pass over here, right? So if I go with 5, so how the 5 values will be stored? So we know each and every value need a variable name. So we are manipulating over here with five values. So then in the background, the array creates five variable with this single line. So what is the benefit? So we are not declaring five variables. We are declaring only one array and ARR and then the size 5. Now what happens in the memory in this line? This is very important to know the array concept, right? This is very important statement. So integer array 5 means we are declaring 5 block in the memory. So how it looks? See, if I declare integer ARR 5, that means name of the variable is ARR and size is 5 means it will allocate the 5 memory. See the 5 block 1, 2, 3, 4 and 5. So each and every block is of 4 bytes. Why 4 bytes? Because in C integer takes
4 bytes of memory. So this is 4 byte of memory, this is 4 byte of memory, this is 4 byte of memory. So all are the same size, 4 byte of memory. Okay, when we go with the with array declaration, these 4 bytes memories are the consecutive memory. What it means, ना जब भी हम array declare करते हैं ARR साइज ऑफ 5, जब हम डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी में 5 ब्लॉक तो बन जाता है, वो हम समझ गए, राइट, 4 4 बाइट के। बट ऑल दिस कंजिक्यूटिव मेमोरी होती है। अब कंजिक्यूटिव मेमोरी का मतलब क्या होता है ना, एक मेमोरी 4 बाइट का खत्म हो गया, उसके बाद वाला 4 बाइट जो होगा वो 4 बाइट की मेमोरी आपको मिलेगी। जैसे ये 4 बाइट खत्म हो जाता है, उनके बाद जो 4 बाइट शुरू होती है, सो ऑल दीज आर द कंजिक्यूटिव मेमोरी, राइट। सो एक के साथ एक लगा हुआ है मेमोरी, स्कैटर्ड मेमोरी नहीं है, जो आपको मेमोरी सिस्टम मेमोरी में से आपको 5 अलग अलग स्कैटर्ड 4 4 बाइट की मेमोरी दे दिया, ऐसा नहीं है, कंजिक्यूटिव मेमोरी है। सो कंजिक्यूटिव मेमोरी होने से क्या हुआ ना, आपको इंडेक्सिंग प्रोवाइड किया जाता है, राइट ना, हर एक मेमोरी का एक इंडेक्स बन जाता है और वो इंडेक्स शुरू होता है 0 से। सो वी हैव 5 ब्लॉक, क्योंकि हमने 5 साइज दिया था, तो 1 2 3 4 5 5 ब्लॉक है। सो फर्स्ट ब्लॉक की जो इंडेक्स है वो 0 है, सेकेंड का 1 है, उसके बाद 2 है, 3 है, 4। सो लास्ट ब्लॉक की मेमोरी क्या होगी ना, n-1। n अगर आपका 5 है, मीन्स साइज अगर 5 है, तो लास्ट हो जाएगा आपका 5-1, दैट इज 4, राइट। सो 0 to 4 आपको मेमोरी, ये मेमोरी आपको मिल जाएगा जब हम इंटीजर ARR5 डिक्लेयर करेंगे, राइट, कंपाइल टाइम में ये आपको मिल जाएगा। ओके, सो इंडेक्सिंग समझ में आ गया। अब इससे सुविधा क्या होगा ना, हम इंडेक्सिंग को यूज करके वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। अब मुझे बताओ इस ब्लॉक का नाम क्या है, इस पहला जो 0 इंडेक्स है, इस ब्लॉक का नाम क्या है, मतलब वेरिएबल नेम, इस ब्लॉक को कौन सा वेरिएबल रिप्रेजेंट कर रहा है और इस ब्लॉक को कौन सा वेरिएबल रिप्रेजेंट करेगा। सो व्हाट आर द नेम ऑफ द वेरिएबल्स हु रिप्रेजेंट्स द ब्लॉक। सो हम तो प्रोग्राम में क्या किया, हमने प्रोग्राम में तो एक ही नाम दिया ARR। सो ईच एंड एवरी ब्लॉक जो है वो सब ARR ए बी ARR है, ए बी ARR है, सब ARR नाम से ही जाना जाएगा। ऐसा कैसे पॉसिबल है, एक नाम से तो जाना नहीं जा सकता है ना सबको, तो हमें क्या यूज करना पड़ता है, साथ में इंडेक्स यूज करना पड़ता है। सो इस ब्लॉक का जो वेरिएबल होगा, एक्सेसिंग वेरिएबल होगा, उनका नाम क्या होगा, देखो मैंने यहाँ लिख के रखा ARR ब्रैकेट में 0। इसका मतलब ये आपका इस ब्लॉक को एक्सेसिंग वेरिएबल का नेम है। तो इस ब्लॉक में जो भी वैल्यू हम डालेंगे उनको एक्सेस करने के लिए हमें ये यूज करना पड़ेगा, ARR द कॉमन नेम एंड देन 0। इस ब्लॉक को एक्सेस करना है तो ARR 1। उसी तरह लास्ट ब्लॉक को जब हम यूज करेंगे तब हम ARR 4। गेटिंग? ओके। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, नीचे वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स ना। जब हम इंट ARR5 प्रोग्राम में टाइप करते हैं और प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो मेमोरी में तो ये 5 ब्लॉक बन जाता है, आपको मालूम पड़ गया। लेकिन और एक ब्लॉक बनता है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है, बराबर, और एक ब्लॉक बनता है। अब ये जो ब्लॉक बनता है इनका जो नाम होता है ना वो ARR होता है, और इस ब्लॉक में वैल्यू होगी, तो ये 5 ब्लॉक का जो बेस एड्रेस है, हर एक का एड्रेस होगा। सो ईच एंड एवरी ब्लॉक हैज इट्स ओन एड्रेस, राइट। तो सब कंसेक्यूटिव है, इसीलिए इनका बेस एड्रेस क्या है ना, ये पांचों का बेस एड्रेस है, जो पहला वाला का एड्रेस होगा, सो दैट इज द बेस एड्रेस। सो फर्स्ट ब्लॉक एड्रेस इज ऑलवेज द बेस एड्रेस ऑफ द एंटायर एरे। सो ये जो ARR यहाँ एक ब्लॉक बनाता है, एक्स्ट्रा मेमोरी लेता है, वो क्या करता है ना, बेस एड्रेस जो होता है ना उनको एज ए वैल्यू रखता है। अब आप ही बताओ, जो वेरिएबल अपने ब्लॉक में एड्रेस को स्टोर करता है वो वेरिएबल को किस टाइप का वेरिएबल बोलते हैं, पॉइंटर। समझ गए? सो हम ऐसा बोल सकते हैं ना, जब हम
एरे 5 ARR 5 करते हैं, इट मीन्स मेमोरी के अंदर 5 ब्लॉक्स बनेंगे और एक ब्लॉक बनेगा जो सिर्फ ARR के नाम से जाना जाएगा, और वो पूरा 5 ब्लॉक्स का जो बेस एड्रेस होगा उसको स्टोर करेगा। तो जो एड्रेस स्टोर करता है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंटर। सो हम बोल सकते हैं ना, जब हम एरे बनाते हैं तो एरे नेम इटसेल्फ ए पॉइंटर। सो एरे नेम इटसेल्फ अ पॉइंटर। क्यों? क्योंकि वो जो 5 ब्लॉक्स है, आपके 5 ब्लॉक्स के जो मेमोरी होती है, वो सारे कंसेक्यूटिव मेमोरी का जो बेस एड्रेस होता है वो स्टोर करता है। क्लियर? अब देखो, इस ब्लॉक का वेरिएबल नेम क्या है ना, ARR 0। तो अगर मुझे वेरिएबल मालूम पड़ जाए तो एड्रेस भी मालूम पड़ जाएगा, सामने एड्रेस ऑपरेटर रख देंगे और वेरिएबल रख देंगे। So address of ARR 0, address ARR of 1, address ARR 2, address ARR of 4. Getting? So हमें यहाँ से जब भी हम इंटीजर 5 करेंगे, इंटीजर एरे 5, सो हमारे दिमाग में ये पिक्चर आ जाना चाहिए, जो ए एक इंडेक्स बनेगा, 5 ब्लॉक बनेंगे, और वो 5 ब्लॉक की वेरिएबल नेम क्या होगी और वो 5 ब्लॉक का एड्रेस क्या होगा। सो ये हम एक्सेस वेरिएबल बनाया, बराबर। ये एड्रेस एक्सेस वेरिएबल हुआ, ये आपको नॉर्मल वैल्यू एक्सेस वेरिएबल हुआ। ये क्या देगा ना, इसके अंदर जो होगा वो देगा। ये क्या देगा ना, पहला ब्लॉक का एड्रेस देगा। ये क्या देगा, सेकेंड ब्लॉक का 1 नंबर इंडेक्स का एड्रेस देगा। ये क्या देगा, 4 नंबर इंडेक्स का एड्रेस देगा, राइट। और अगर मैं ARR को प्रिंट करता हूं कभी भी, तो वो क्या देगा, वो बेस एड्रेस देगा। इनका मतलब ये पहला ब्लॉक का एड्रेस कौन देता है, ये देता है। तो इतना लंबा ना लिख के आप ARR लिख दोगे तो भी आपको बेस एड्रेस मिल जाएगा। सो अभी हम ना नेक्स्ट जो प्रोग्राम बनाएंगे ना, उसके अंदर ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट हम बाद में देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो उससे पहले हम इंडेक्सिंग का जो मैटर होता है ना, वो सब चेक कर लेते हैं, राइट। सो हम अभी क्या करेंगे ना, ये सब में वैल्यू डालेंगे और वो वैल्यू को प्रिंट करके देखेंगे। सो इसका जो नाम है वो याद रखना, ARR 0, ARR 1, ARR 2, ARR 3, ARR 4, राइट। सो हम प्रोग्राम में बैक करते हैं। अब देखो, मैंने ARR 5 बनाया, इट मीन्स मैंने सिर्फ मेमोरी एलोकेट कर दिया और कुछ की नहीं है, वैल्यू नहीं डाली ना। सो एरे में वैल्यू कैसे डाला जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। एरे में वैल्यू आप डायरेक्ट डाल दो, इस तरह से आप डाल सकते हो। 1 से लेते हैं, चलो हम लेते हैं 10, 20, 30, 40 एंड 50। सी, हमने देखो 5, हमने साइज 5 दी, सो हमने 5 वैल्यू यहाँ एंटर कर दिया। वी हैव एंटर्ड ऑलरेडी 5 वैल्यूज। सो ये जो 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, ये कहाँ जाएगा? तो मेमोरी में अगर जाए, सो यहाँ आएगा 10, यहाँ आएगा आपका 20, यहाँ 30, यहाँ 40 और यहाँ 50। गेटिंग? सो ये आपका इस लाइन से लिखने से हो जाएगा। अब हम इस वैल्यू को ना प्रिंट कैसे करेंगे ना, प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे ना, प्रिंट एफ, मुझे पहला फर्स्ट ब्लॉक की वैल्यू को प्रिंट करनी है। सो मैं अब वैल्यू क्या डाली, इंटीजर वैल्यू डाली। सो हम यहाँ लिखेंगे, ओके। सो ये लिखने से आपको क्या मिल जाएगी, 0 ब्लॉक की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। इसी तरह 5 हो गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 1, 2, 3, 4, राइट। अब इस प्रोग्राम को हम रन करके देखेंगे, राइट। अब यहाँ कंपाइल करते हैं। देखो 10, 20, 30, 40 और 50, तो जो वैल्यू हमने डाली वही वैल्यू मुझे यहाँ से मिल गई। सो इससे बेनिफिट क्या हुआ, देखो ना, मैं 5 वेरिएबल लेके काम करता हूँ, लेकिन मेरा जो नाम होता है ना वो एक ही है, ARR।
एक्चुअली नाम एक नहीं होता है, बट जो कॉमन नेम है वो सेम है। एक्चुअली नाम तो 5 ही होता है ना। ए आर आर ऑफ 0 देखो अलग हो गए, 0 दिया तो। फिर यहाँ ए आर आर ऑफ 5 1, ए आर आर ऑफ 2, ए आर आर ऑफ 3, ए आर आर ऑफ 4। तो इनका मतलब हो गया ना, हम 5 वेरिएबल अलग अलग यूज कर रहे हैं, बट एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन हम 5 डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, एक ही डिक्लेयर कर रहे हैं, ए आर आर। गेटिंग माई पॉइंट? सो ये है आपका एरे कैसे बनाया जाता है, राइट? अब आप अभी देखो, इसके अंदर अगर मैं एक फॉर लूप, अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ क्या होता है ना, सारे वैल्यू को अगर मुझे प्रिंट करनी है तो मैंने क्या किया, यहाँ 0 किया, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। अगर मेरे पास 10 है या 50 है तो मुझे इस तरह से 50 पर लिखना पड़ेगा ना। 49 तक मुझे लिखना पड़ेगा। सो ये सब अगर ना करे और मैं एक फॉर लूप रख देता हूं, देखो है ना, यहाँ एक फॉर लूप अगर मैं रख दूं, अभी आपको समझ में आएगा ये जो लूप वगैरह का यूज कैसे किया जाता है। सो देखो, इसको यहाँ बंद कर दिया, राइट? अब ये सारे लाइन मैंने निकाल दिया। अब देखो i की वैल्यू क्या है, 0, i लेस देन 5, मतलब लेस देन 5 मतलब 4, राइट? मैक्स वैल्यू 4 होगी। तो ये जो 5 हमने दिया, ये क्यों दिया ना, साइज ऑफ एरे, एरे का साइज क्या है, 5 है, तो हमने लेस देन 5 दिया, तो 0 1 2 3 4, राइट? सो ये जो आई है वो आई को मैं कहाँ रिप्लेस करूंगा, ये जगह पे मैं रिप्लेस कर दूंगा, राइट? अब चेक, हम फॉर लूप, हमें फॉर लूप आता है, तो फॉर लूप में मैं इंडेक्स की जो वैल्यू है उनको मैं 0 से लेस देन 5 तक घुमा दिया और ये प्रोग्राम को रन कर दिया। देखो आ गया सेम रिजल्ट आपका, कोई दिक्कत नहीं है। गेटिंग? तो ये था एरे डिक्लेरेशन विथ वैल्यू, राइट? हमने वैल्यू के साथ इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन हमने एक साथ कर दिया। अब इसमें मुझे ना कुछ एक्स्ट्रा कुछ बातें करनी है। अगर सोचो आपने यहाँ 5 दिए हो, बराबर, और इसके अंदर आपने सिर्फ 3 पास किए हो, तो ये पॉसिबल है या नहीं ना? ये पॉसिबल है, राइट? अगर आपकी साइज साइज ज्यादा है एंड जो वैल्यू इनिशियलाइज किया वो कम है, इसका मतलब क्या हुआ ना, यू हैव 2 ब्लॉक्स एक्स्ट्रा जिसमें आपने वैल्यू नहीं डाली, तो ये हमेशा ट्रीट होता है पहला 0, तो ये 0 पे जाएगा, ये 1 पे जाएगा, ये 2 पे जाएगा, राइट? सो 3 पे और 4 इंडेक्स पे कौन जाएगा, वो आपने स्पेसिफाई नहीं किया है। सो स्पेसिफाई नहीं किया तो कोई बात नहीं है, आपको हर एक वैल्यू यहाँ देगा। तो 0 का देख लेते हैं एक बार, देखो देखो दिया हमने, 0 प्रिंट किया तो 0 का ही वैल्यू मुझे मिल गया 10। अब मैं 1 का करूंगा तो मुझे क्या देगा, 20, एंड इफ आई गो विथ इंडेक्स 0 1 2 तो हम मुझे 30 देगा, राइट? लेकिन अगर मैं यहाँ इंडेक्स 3 करूं, इनका मतलब होता है 0 1 2 3, फोर्थ ब्लॉक, लेकिन आपने फोर्थ ब्लॉक की तो वैल्यू दी नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? नहीं दी ना, तो क्या आंसर आएगा ना, यहाँ आंसर आएगा 0। लेट्स से देखो, फोर्थ ब्लॉक की वैल्यू हमने इनिशियलाइज नहीं किया इसीलिए आ गया 0। अगर आपने यहाँ साइज दिया और वैल्यू, अगर एक भी वैल्यू आपने इनिशियलाइज कर दी, एक भी, और 0 से लेकर 4 तक जो इंडेक्स बनता है उनमें से किसी को भी आप यहाँ प्रिंट करते हो जिसकी वैल्यू नहीं है, तो वो आपको 0 देगा। समझ में? मैंने एक वैल्यू इनिशियलाइज किया, तो मैं अगर यहाँ 1 का देखना चाहूंगा, 1 मतलब सेकंड का, तो आपको 0 देगा, राइट? यू विल गेट 0 0। गेटिंग? मतलब बियॉन्ड द इंडेक्स अगर कोई वैल्यू मैं प्रिंट करना चाहूंगा तो उसके लिए आपको क्या आ जाता है, यहाँ जंक वैल्यू आ जाती है, राइट? अगर नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ एक्चुअली एरर देना चाहिए था, बट जावा में जाओगे ना, जावा के अंदर आपको ये एरर देगा, एरे आउट ऑफ बाउंड्स, दैट मीन्स you are accessing the seventh block but you have declared only 5 block।
सी के अंदर क्या करता है ना, ये आपको एक जंक वैल्यू दे देता है यहाँ रैंडम, राइट। सो ये एक्चुअली सही नहीं है, बट ऐसा होता है, तो हमें वो ध्यान में रखना पड़ेगा, राइट। और एक चीज है, अगर आपने 5 ब्लॉक बनाया बट आपने वैल्यू डाल रहे हो थोड़ा ज्यादा, तो क्या होगा देखो, है ना। तो हमने कितना डाला, 2 4 6 7, और आपने डिक्लेयर कितना किया, 5। तो ये जगह पे क्या होगा, ये जगह पे आपको देखो ये लाइन लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप सिंपली इसको रन करोगे ना तो आपको एक एरर थ्रो करेगा। क्या लिखता है ना, एक्सेस एलिमेंट्स इन एरे इनिशियलाइजर। इनका इनका मीनिंग ये कहना चाहता है ना, आपने मेमोरी डिक्लेयर किया है 5 ब्लॉक का, और आप वैल्यू साथ में डालना चाहते हो 7 का, राइट। सो आपने दो ज्यादा डाल रहे हो, बराबर, तो इनका जगह नहीं है, इसीलिए वो कंपाइल टाइम में ही एरर दे देता है। समझ गए। सो हमें क्या देखना है ना, इस साइड में नंबर ऑफ वैल्यूज जो है दैट शुड बी ऑलवेज सेम और लेस देन द साइज, राइट। द वैल्यू, नंबर ऑफ वैल्यू कैनॉट exceeds the size of array, सिंपल है। तो ये है आपका एक छोटा सा एग्जांपल है एरे को किस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है, राइट। सो ये था इंटीजर एरे। तो सिमिलर वे में आप क्या कर सकते हो ना, कैरेक्टर एरे भी ले सकते हो, कोई भी वेरिएबल, फ्लोट फ्लोट का एरे ले सकते हो, कैरेक्टर सोचो CH, और मैंने इनके अंदर एरे ले लिया 5 या 3, वट एवर। सो हम यहाँ क्या कर सकते हैं ना, यहाँ देखो एक नियम है, यहाँ ना हमें कोटेशन के अंदर वैल्यू डालना पड़ेगा, राइट। कोटेशन के अंदर इस तरह से वैल्यू डालना पड़ेगा, सिंगल कोट यूज करो तो बेस्ट है, ऐसे, राइट। तो आप बस वही सेम सेम नियम है ना, आपने 3 दिया तो यहाँ भी आपने 3 दिया, तो ये 0 ब्लॉक का है, ये 1 ब्लॉक का है। इनको जब आप प्रिंट करोगे तो कैसे करोगे ना, CH ऑफ 0, और यहाँ कैरेक्टर आ जाएगा। अब देखो मैं अगर ऐसा लिखता हूँ ABC ना, तो %C, %C, राइट। और न्यू लाइन दे देते हैं एक, और यहाँ हम देते हैं 2, राइट। ऐसा अगर हम करते हैं और इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो आपको क्या दिखेगा, देखो ABC तीनों प्रिंट हो गया एक ही लाइन पे। अगर न्यू लाइन देके करना है तो भी कर सकते हो, राइट। तो ये था आपका एरे का सबसे पहला प्रोग्राम। तो ये जो चीज है ना, मैं जो बताया था, ये पिक्चर आप एरे बनाते टाइम आपके दिमाग में रखना पड़ेगा, बराबर। एक काम करते हैं, इंटीजर एरे लेके ना एक डायनामिक इनिशियलाइज करते हैं। व्हाट आई मीन टू से ना, एरे तो मैंने 5 दे दिया, बट इसकी जो वैल्यू होगी ना, वो मैं रन टाइम में प्रोवाइड करने वाला हूं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल 5 वैल्यू देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, हम यहाँ क्या यूज किया ना, फर्स्ट ब्लॉक में वैल्यू स्कैन हो गई, तो इसी तरह हम क्या करेंगे, दूसरे में स्कैन करना पड़ेगा। सो उसके लिए मुझे ये लाइन फिर क्या करना पड़ेगा, दोबारा लिखना पड़ेगा, फिर तीसरे बार लिखना पड़ेगा, फिर फोर्थ टाइम, फिर फिफ्थ टाइम। तो इतना लंबा अगर ना करे और इसको लूप में रख दे तो भी चले, है ना। तो इसको मैं एक फॉर लूप में रख दूं, बंद कर दूं यहाँ स्टार्टिंग में, राइट, बस। और फिर मैं प्रिंट करूं, जब जो वैल्यू मैंने डालूंगा उनको मुझे प्रिंट करना है। /n अगर देना है तो दे सकते हैं, /n और ARR ऑफ I। देखो, तो हमने क्या किया, वेरिएबल का जो नेम है हर एक ब्लॉक का वो ARR I है, बराबर। I मतलब 0 1 2 3। तो ये लूप घूमता रहेगा और आपका एक एक प्रिंट होता रहेगा। तो सबसे पहले हम इनको रन करके इनको स्कैन करवाएंगे, राइट। सो सबसे पहले मैं इनको क्लियर कर देता एक बार, राइट, हो गया।
अब मैं यहाँ रन करता हूँ। देखो सबसे पहले मुझे पूछा एंटर नंबर, तो फर्स्ट ब्लॉक के लिए मैं एक नंबर डालता हूँ 10, उसके बाद मैं डालता हूँ 20, उसके बाद मैं डालता हूँ 30, उसके बाद 40 एंड देन 50। जैसे ही मैं एंटर मारूं तो देखो ये वाला लूप का काम खत्म हो गया स्कैन का, और ये वाला जो लूप है ये आपका उस ब्लॉक में से वैल्यू को आपको प्रिंट करके दे दिया, राइट। सो ये प्रोग्राम में एरे एरे रख के हमें आसान क्या हुआ, एरे का बेनिफिट क्या हुआ ना, हम एरे बना के सेम नेम, एक कॉमन नाम को यूज करके लूप घुमा के उनका इंडेक्स को यूज करके एक बड़ा प्रोग्राम को कैसे छोटे कोड में दो फॉर लूप में बना दिया। एक फॉर लूप स्कैन करवा दिया एक लाइन का, और एक फॉर लूप एक लाइन में प्रिंट करवा दिया, राइट। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग एरे, राइट। ठीक है। सो इस लेसन में यही रखते हैं, और नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे एरे को और किस तरह से यूज किया जाता है, राइट। और भी बहुत प्रोग्राम होंगे एरे को लेके, वो हम एक एक करके देखेंगे। ओके। सो ठीक है, दूसरे लेसन में मिलते हैं। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स।